Hello my dear students. So here is Meenakshi Walia from Sri Swaminarayan Vidyalaya. Today we are moving further with our social science syllabus, and in that we are starting with geography part. Okay, and in that chapter number 3, that is natural resources, natural vegetation and wildlife. See, first of all, we should be clear with the meaning of the name of the chapter, right? So the name of the chapter is what? Natural resources, natural vegetation and wildlife. See, first of all, the question arises, what is natural resources? So resource, this word we have already heard, right? In the last chapter we have studied about the resources. Resources means what? The things which we use to satisfy our needs. ऐसी चीज़ें जिससे हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स. एंड इन दैट केस ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट वाज नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब देखो बात आती है ह्यूमन मेड, तो आपको पता है ह्यूमन मेड, इट वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट जो किसी इंसान ने बनाया, इस टाइप के रिसोर्सेज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब बात आती है तो फिर नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, जो हमें नेचर से गिफ्ट में मिले हैं, दैट आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. अब यहाँ पे चलो नेचुरल रिसोर्स समझ आ गया. दूसरा वर्ड क्या है? नेचुरल वेजिटेशन. अब ये नेचुरल वेजिटेशन क्या है? सी, if I simply define the natural vegetation, it is actually the plants that grow naturally in a particular area. कोई भी एक particular area में different varieties of plants अगर grow किए जाते हैं तो that will become the natural vegetation. Like forest you can take as the example, right? Forest जो है वहाँ पे बहुत सारे different plants होते हैं, grasslands. So these are the natural vegetations. Now the next word is wildlife. Now if I talk about the wildlife and मैं आपसे पूछूं कि आपको wildlife से क्या समझ आता है? So wildlife is simply different species of animals in a particular area, right? एक particular area में जब अलग अलग type के animals, उनके species जो है पाए जाए, that is called the wildlife. Forest में wildlife होती है, right? So means एक तरह से दोनों एक दूसरे से connected हैं. अब बात आती है कि इन दोनों चीज़ों को natural resource क्यों बोला है? ये हमारे क्या काम आते होंगे? तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो यू नो मेनी यूजेस ऑफ प्लांट्स, राइट? प्लांट इज यूजफुल टू गिव अस द वुड, we get oxygen from plants, it even give the habitat to many animals, right? And even we get different types of plants, trees for the commercial use. So in many ways plants are useful to us. And what about the wildlife? तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कोरोना वैक्सीन्स जो बन रही हैं, वो वैक्सीन्स डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट नहीं की जाती है, वो पहले एनिमल्स पे टेस्ट की जाती हैं. ओके, सो इस केस में हमारे लिए एनिमल्स तो काम है. और उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एनिमल्स और भी बहुत सारी जगह यूज़फुल हैं, लाइक उनकी स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. ठीक है, तो ऑन द वन और द अदर वे इफ़ आई से बोथ द रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल टू अस, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द नेचुरल रिसोर्स. ओके, so now you are clear with the name of the chapter. If I talk about the introductory part of the chapter in your book, in that one word is given which is new for you, that is biome. ये word आपने पहले नहीं सुना होगा. Now what is this biome? See, biome is actually where the different types of plant and animals live together in a particular area. कोई एक पर्टिकुलर एरिया में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसाइड करते हैं तो उसे कहते हैं बायोम. ओके, सो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बायोम इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, लाइक लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स, वो सारे एक बायोम में आए. एंड एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सारे एक बायोम में आए. सो वी कैन से जो इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है ना, दीज आर एक्चुअली द बायोम्स. ओके, so this was about this new word. I hope it is clear to you. Now
we need to divide this chapter into two parts. First one is natural vegetation and the second one is wildlife. So first we will study about the natural vegetation, and if I talk about the natural vegetation, the major types of natural vegetations are actually forests, grasslands and all these, right? So we need to study about the different types of forest in that part. So let's start with this, that different types of forest are there. Now which are these different types? Now see, we are having different types of forests like tropical evergreen forest, tropical monsoon forest, temperate evergreen forest, Mediterranean forest, temperate deciduous forest, coniferous forest, then tropical grasslands, temperate grasslands, tundra vegetation, desert vegetation. These are various types of forests which we need to study. So let's start with the first type, that is a tropical evergreen forest. Tropical evergreen forests are mostly found in those areas where there is the excessive rainfall. ऐसे regions जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उन एरियाज़ में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। अब बात आती है ये कौन सी एरियाज़ है जहाँ पे बहुत बारिश होती है? मोस्टली इफ ऐसे ना इक्वेटर वाली एरियाज़। अब आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है, इक्वेटर जो है ना उस पार्ट पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, तो एकदम स्ट्रेट रेस जो है सन की पड़ती है, तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, एंड वहाँ गर्मी बहुत होती है इसीलिए वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन एरियाज़ में अगर मैं वेदर की बात करूँ तो बहुत ही हॉट एंड वेट वेदर आपको देखने को मिलेगा, मीन्स गर्मी भी उतनी है जितनी बारिश होती है। ठीक है, सो इस वजह से ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही थिक एंड डेंस ट्री कवर्स के साथ होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और इतने घने ट्रीज़ होते हैं कि वो पूरे इस तरह से जो है एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं। ओके, एंड इनके कवर करने की वजह से जो सन रेज होती हैं वो ग्राउंड तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पे ट्रीज ऐसे पूरा कवर बना रहे होते हैं, इस वजह से सन रेज ग्राउंड पे पहुंचती ही नहीं है। यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह का जो है ये कवर फॉर्म करते हैं। तो एक तरह से ये इसकी क्वालिटी है कि यहाँ के ट्रीज जो हैं बहुत ही थिक एंड डेंस होते हैं। अब बात आती है कि कौन से ट्रीज इन फॉरेस्ट में पाए जाते होंगे, तो मेनली सिनचॉन, then rubber, ebony, rosewood, mahogany, ये सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। And if I talk about the main areas where these forests found, so they are like Amazon basin of South America. Then these kind of forests are also found in the Malaysia and Southeast Asia. Then parts of Philippines, Zaire basin of Africa. So these are some major places where these kinds of forests are found. In Amazon basin, these forests are termed as selvas. उनकी लोकल लैंग्वेज में इन फॉरेस्ट को बोला जाता है सेल्वास। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड इन वन मार्क क्वेश्चन, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो दिस वाज अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसकी खासियत क्या है कि यहाँ के ट्रीज जो है एकदम थिक एंड डेंस होते हैं और वो इतना ज़्यादा कवर कर लेते हैं, इतना एक अच्छा सा कवर रेडी करते हैं जिसकी वजह से सनरेज जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, tropical monsoon forest. Now these kind of forests are mostly found in the tropical areas. अब tropical areas means क्या? Tropical areas जो है ना वहाँ पे आपको monsoonal type का climate देखने को मिलता है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ड्राई थोड़ा वेट होता है, वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखो जो हमने पहले वाला देखा ना उसमें क्या था, एक्सेसिव रेनफॉल वाली एरियाज, यहाँ पे मॉनसूनल क्लाइमेट मतलब इनफ रेनफॉल होनी चाहिए जो सूटेबल हो। ओके, अब बात आती है कि इस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, अदर देन दैट ईस्टर्न अफ्रीका, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए। अब इन फॉरेस्ट की खासियत क्या होती है, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इजीली एक्सेसिबल है। अब इजीली एक्सेसिबल मतलब देखो इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, मतलब जो पहले वाले में कैसे था कि एकदम डेंस होते हैं एंड वो पूरा ऐसे कवर कर लेते हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता है।
इनके जो ट्रीज़ हैं वो दूर दूर होते हैं और इतने ज़्यादा डेंस नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो ट्रीज़ होते हैं ना वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कॉमर्शियल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो मार्केट में सेल होते हैं एंड सेल होने के बाद उसमें से काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। सो ये भी इन ट्रीज़ की खासियत है। मेनली यहाँ पे कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट दैट, तो दे आर यूकलिप्टस, सैंडलवुड, साल, बैम्बू एंड टीक। ये ट्रीज़ जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सी, temperate evergreen forests are mostly found in those regions where there is the warm temperate regions। अब वार्म टेम्परेट रीजन्स मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अब ऐसे कौन से रीजन्स हैं, तो लाइक साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, सदर्न जापान, सदर्न चाइना एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न यूएसए। इन जगहों पे इस टाइप के फॉरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पे वार्म क्लाइमेट है। ओके, अब कौन से ट्रीज यहाँ पे होते हैं, तो मोस्टली वॉलनट, पाइन, ओक, मलबरी, ये ट्रीज जो है यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट इज Mediterranean forest. Now these kind of forests are actually developed due to hot dry summer and warm wet winter created by Mediterranean Sea। ये जो सी है वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट होता है एट द टाइम ऑफ समर, समर्स के टाइम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे होता है एंड विंटर्स के टाइम पे जो है वेट क्लाइमेट यहाँ पे होता है। तो उसकी वजह से इस टाइप के फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो पाए हैं। यहाँ के फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, ठीक है, एंड इनकी जो हाइट है ट्रीज़ की दैट इज़ एक्चुअली मीडियम हाइट होती है उनकी एंड ये एवरग्रीन होते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। यहाँ के ट्रीज़ एवरग्रीन होते हैं, इनकी लीव्स इजीली शेड नहीं होती हैं। अब ऐसे कौन से ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे पाए जाते होंगे, तो दे आर लाइक कैडर, पाइन, ऑलिव, ओक। ये ट्रीज़ जो हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। ओके, अब ये जो है ये तो बात हुई ट्रीज़ की। अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की, तो यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ भी होते हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना जिसमें खटास होती है, खट्टे वाले फ्रूट्स, वो वाले ट्रीज जो हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड अदर देन दैट द मेन क्वेश्चन इज कि ये जो फॉरेस्ट हैं वो कौन सी एरियाज में लोकेटेड होते हैं, तो दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन इटाली, स्पेन, इजराइल, Southern France, Turkey, Central Chile, California in USA, Southwestern Australia। ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। Let's move to the next, that is the fifth type, temperate deciduous forest। Now these kind of forests are mostly found in those areas where there is the cool temperate zones। We can say यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही कूल होता है, उन एरियाज में इस टाइप के फॉरेस्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सो इफ़ आई से द प्लेसेस वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड लाइक सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप, कैनेडा, नॉर्थ वेस्ट यूएसए, नदर्न जापान, नदर्न चाइना, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कूल क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनके यहाँ की ट्रीज़ की, तो इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं ना वो ज़्यादा टॉल नहीं होते, लेकिन उसकी जो लीव्स होती है ना वो ब्रॉड होती हैं और उनकी जो बोल सकते हैं जो नोक होती है तो बहुत नुकीली लीव्स होती है, ठीक है ना, थिक ट्रंक होती है इनकी। ये आपको याद रखना है कि ट्रीज़ कैसे होते हैं, टॉल नहीं होते, लीव्स इनकी ब्रॉड होती हैं एंड जो ट्रंक है वो थिक ट्रंक रहती है। ओके, अब इन ट्रीज़ की खासियत क्या है, तो इन ट्रीज़ की खासियत ये है कि ये इवन 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम भी टेम्परेचर होगा ना तो भी ये ट्रीज सर्वाइव कर सकते हैं। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ दीज ट्रीज। माइनस में भी टेम्परेचर होता है कूल प्लेसेस पे, तो राइट, सोचो कितनी ठंड होती होगी वहाँ पे, उस क्लाइमेट में भी दीज ट्रीज कैन सर्वाइव। लेकिन ऑटम सीजन में इसकी लीव्स शेड होती हैं, राइट, पतझड़ जिसको आप बोलते हो, ऑटम सीजन में इसकी लीव्स शेड होती हैं। कौन से ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सो दे आर एश, मैपल, डॉगलस फिर, बिर्च, रेडवुड,
एंड पॉपुलर। ये कुछ ट्रीज है जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके, so this was about the 5 types of forest which we have studied in this video. Now there are many more types of forest in this chapter, right? That we will learn in the next video which I am going to send you. Thank you.